दीर्घ दिन धरी श्री अरविंदकर दिगोत्सवन ग्रंथर नाना अध्याय आलोचना करी तार शेष पर्याय पहुंचती। वर्तमान आम जो विषय अच्छी आत्म परिपूर्णतार मन विज्ञान शुणा सहज लगे आम सबुठ कष्टकर कथा। ता पूर्व आम आलोचना करते समग्र परिपूर्णता। तेणु आम जीवन कहले आम आत्मा बोली जदि बुझीबा ताहले कौन सी प्रकार माँ श्री अरविंदकर फोटो रखी नीरवरे पाखरे बसी आमको आमर आत्मा सहित संपर्क स्थापन करने हम। मन को आसब किपर संपर्क स्थापन करवा खाद्य जिनस परी जपरी संपर्क स्थापन कर चाषबास परी जपरी संपर्क स्थापन कर पाठ पढ़ा प्रति जपरी संपर्क स्थापन कर जीवन यात्रार प्रति जपरी संपर्क स्थापन कर। कारण भाई भौणी माने आमे समस्ते जानते आम भितर गोटे आत्मा अच्छी आम हृत्स्पंदन जोठू बाहर आमर आत्मा से अच्छी से आत्मा परमात्मा पाखु आसी परमात्मा सहित संपर्कित। केते थर मु कही आत्मा परमात्मा आड़ को अग्रगति करगला बेले बाटरे आम निकटरे जहाँ पहुँचब ता अतिमानस माँ श्री अरविंद भगवान अतिमान समाज एक चेतना एक शक्ति। किंतु आमर आत्मा आम मन भितर आम प्राण भितर आम शरीर भितर आच्छन्न होती सूर्य जमती मेघ भितर आच्छन्न होती शांति आत्मा से भली अच्छी शरीर अच्छी प्राण अच्छी मन अच्छी। आमे से सबको जदि देखा चेष्टा करवा जुग हूँ एक अंतर्गत प्रतिष्ठा से भली आत्मा सहित आमर संपर्क स्थापन है बेले आमको जी बाधा दौची आब से हूँ अहंकार। अध्याय टी पूरा पढ़िले आम भितर शब्द सबू संजीवित हम। शरीर अच्छी प्राण अच्छी मन अच्छी आत्मा अच्छी अतिमानस अच्छी सचित आनंद तलकू अतिमानस शरीर प्राण मन उपरकू आत्मा ते अहंकार कौट आसला से जो अहंकार जे पर्यंत आमे ताकू अतिक्रम करी नांती जे पर्यंत श्री अरविंदकर रूपांतर जगरी अतिमांस सहित संपर्कित हो पारि नांती केवल मां को कृपा ही आवरण चिन्ह कर दे पारे मिथ्या वेदनापूर्ण जगत रे उतारी आनी पारे सत्य ज्योति दिव्य जीवन एवं अमर आनंद विषय वस्तु भीतर को गला बेले प्रथमे आम आखिरे पड़िब दिव्य आत्म परिपूर्णता को मनुष्य प्रकृतिर
ହବ, ମନ ଭିତରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହବ। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅର୍ପିତ। ମୁଁ ଆର ଥର କହିଥିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦାଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବା ବଶିଷ୍ୟତେ। ସବୁ ହଉଛି ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ସବୁର ମୂଳରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି। ମନୁଷ୍ୟର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିବାକୁ ହବ। ପୁଣି ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କିପରି ସମ୍ପର୍କିତ ହବ, ଅଗ୍ନି ସହିତ କାଠ କିପରି ସମ୍ପର୍କିତ ହୁଏ। ନିଆଁ ଜାଳୁଥିଲା ବେଳେ ଚୁଲିରେ ଦେଖିବା, ସେ ନିଆଁ ତ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ସେ ଯେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସେଇ କାଠ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛୁ। ସାଦୃଶ୍ୟ ମୂଳଭୂତ ଏକତ୍ଵ। ସାଦୃଶ୍ୟ ମୂଳଭୂତ ଏକତ୍ଵ ହେଉଛି ସେ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ଜଳୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସେଇମିତି ଜଳୁଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏକତ୍ଵକୁ, ଏକତ୍ଵର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଭିନ୍ନତ୍ଵ। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବିକି ଆମର ଦୁଃଖ, ଆମର ସୁଖ, ଆମର କାମନା, ଆମର ବାସନା ସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆକାରରେ ଜଣେଇବାରେ ଲାଗିଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ସାଦୃଶ୍ୟ ମୂଳଭୂତ ସହିତ ଏକତ୍ଵ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତା ରୂପାନ୍ତର। ବହୁଥର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଶବ୍ଦର ନାଁ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର। ଅତି ମାନସ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ, ମନର ରୂପାନ୍ତର ହବ। ଅତି ମାନସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ, ପ୍ରାଣର ରୂପାନ୍ତର ହବ। ଅତି ମାନସ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ, ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର। ରୂପାନ୍ତରର ଶକ୍ତି କେବଳ ଅତି ମାନସର ଅଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସତ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଇ ଅମୂର୍ତ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର। କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ପଶ୍ୟମେ ଶତଶୋ ଅଥ ସହସ୍ରଶ, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ରୂପରେ ବସି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅର୍ଜୁନର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସେଇଠୁ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମର ଦୁଇ କପାଳ ମଝିରେ ସେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି, ପରମ ବହି ଯେଉଁମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପାଦ, ମାଙ୍କର ହାତ, ମାଙ୍କର ମୁହଁ, ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ଭାବନା, ଚେତନା, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହବ। ମା ଯେମିତି ପଢିଛୁ ସମସ୍ତେ, always behave as if mother is looking at you. Do not do anything which you cannot do before her. ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କର, ଯେମିତି
ମା ତୁମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନା। ଏଇଭଳି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ, ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍ଗତ ଜୀବନ, ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ, ଏଇ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଯୋଉ ବନ୍ଧନ, ଯୋଉ କାମନା ବାସନା, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛା ଆବେଗ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଅହମିକା, ତୋର ମୋର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଭାବ, ତାର ଭିତରୁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିମୋଚନ ହଉଛି ଖୋଲିଯିବା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେମିତି ପାଣି ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ, ଆକାଶ ଭିତରେ ଯେମିତି ବାୟୁ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ, ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଯେମିତି ଚେତନା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ଖୋଲିଯିବ। ସେଇ ଯିଏ ଭଗବାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତୀତ, ସେଇ ଆମର ଅନ୍ତର ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହବ। ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥାକୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ତର ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦିବ୍ୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। ବାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ, ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ବାହ୍ୟ ରୂପ, ବାହ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ସ୍ପନ୍ଦନ, ସେ ଆମର ଆତ୍ମା, ସେ ଆମର ଭଗବାନ, ସେ ଆମର ଶିବ, ସେ ଆମର ଦୁର୍ଗା, ସେ ଆମର ଶ୍ରୀମା, ସେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନ ଶକ୍ତି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନା, ରୂପାନ୍ତର ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି କୌଣସି ବାଟରେ ଆମକୁ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ରହିବ। ଏ ଜୀବନ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ସେଇ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ନାଁ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଆମକୁ ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଯୋଗ, ଏଇ ସକଳ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ମନନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିନାଶଶୀଳ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷକ ଯେମିତି ଭୁଲ ଠିକ ବାଛନ୍ତି, ସେମିତି ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖିକି ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ମନକୁ ନେଇକି ଆମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି, ଚାରିତ୍ରିକ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ସବୁକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି କ୍ରିୟା କରୁଛି, ଏକ ବିନାଶଶୀଳ ଚେତନା ସେହିପରି କ୍ରିୟା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ପଢିଛୁ, ସାବିତ୍ରୀ ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଶରୀର ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିନାଶଶୀଳ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଯିଏ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶଶୀଳ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ବିନାଶଶୀଳ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ବିକାଶଶୀଳ ଆତ୍ମା କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ଅଛି? ବାରମ୍ବାର 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 ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ଏକା ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଜଣେ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଅଛି,
से हूँ अंतरात्मार चेतना, अंतरात्मार भावना। तेणु से परम अविनाशी सत्ता, ये परम विनाशशील सत्ता भितर आत्मगोपन करिकी अछि। फूल भितर महू थिला भलिया केवल महुमाछी संग्रह करि पारिबो। सेही भली आमरे जो प्राण प्रसाद पशुभूमिस्थ मनुष्य, आमे मनुष्य जन्म पाइछंती, किंतु पशु प्रकृति आम भितर अछि। राग, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, पद, वात्सल्य। आमे तो पशुरु मनुष्य भितर को उत्तीर्ण होइछंती, पुणी पशु प्रकृति कहीं अच्छी? पशु प्रकृति थिले मध्य दिव्य प्रकृति मध्य अच्छी। तेणु आमे जदि सब से पशुभूमिस्थ मनुष्य परी निम्नतर चेतना भितर मजिकी रहिबाकू चेष्टा करिबा, निजर सुख दुख परिचर्या निज जीवन भितर को चिंता करिबा, ताहले आमे सबुदिन से निम्न स्तर रे थिबा। तेणु से सुखदायी पुण्यश्वर्य विकास जोगर जहा होछि लक्ष्य, जोगर जहा होछि आदर्श, एक पूर्ण ऐश्वर्यमय संपद आम पाखरे अछि। आहरी सहज भाषा में कहूँ, पशुत्व जेमिति आम भितर अच्छी, दिव्यत्व सेमिति आम भितर अच्छी। योग हूँ गोटी साधना, योग हूँ गोटी पर्याय। आमको पशुत्व को परिहार करने को हम, दिव्यता को विकास घटवा पड़ो। मनोवैज्ञानिक जटिलता हूँ एक केन्द्रस्थ रहस्य। केन्द्रस्थ रहस्य आमको आम हृत्केन्द्र भितर ये कार्य करने को पड़ो। तेणु गोटे शब्द अच्छे आत्म आविष्कार। आमको आम आत्मा को आविष्कार करने को हम, आत्मार रूपांतर करने को पड़ो। पुणी थे मन पकई दूसरी, आत्मार रूपांतर अर्थ आमको अति मानस सहित संपर्कित होगा पड़ो। आत्मा सेमिति अंतर्गत चेतना, अति मानस सेमिति अंतरात्मा चेतना। केते थर मु आपण मानकु कहिछि, मांकर से पानी मो सबुदिन अति मानस जगत रे अति मानस शरीर लेकी अच्छी। मु होछि तोर अंतरात्मा, मु होछि तोर चैत सत्ता। तेणु जी माँ से अति मानस जगत रे अछंती। अति मानस आम पाखरे दुरंत मन हेले मध्य सी आमर अंतरात्मा रूप में विद्यमान अछंती। तेणु मनुष्य प्रकृति जे पर्यंत दिव्य प्रकृति रूपांतरित रही, एक बृहत्तर आदर्श शक्ति संपन्नता को निज भितर ग्रहण न करिछि एवं आत्मार चारिपाखरे निबुज रही खोसा को अतिक्रम न करिछि, से पर्यंत अतिमानस रूपायन आम निकट में कष्टसाध्य होइछि अछि। आमे कथारे केवल कहूचु, किंतु कार्यटी करि पारु न, कारण कार्यटी सहज साध्य नुहे। जे पर्यंत आम भितर गोटे वाक्य हूँ समर्पण लिखाई, तुम समर्पण को संपूर्ण कर, आउ सब किछि तुम पाई कर दिया जीव। तेणु समर्पण, समर्पण आगुरु अच्छी आस्पुरा, आस्पुरा आगुरु अच्छी प्रत्याख्यान। तेणु भगवान को चाहिए दुष्ट प्रकृति सबको छाड़ा को चेष्टा करियो, ताहले जाके समर्पण हम। कारण ये हूँ गोटे शर्त, से अतिमान स्वरूपायन से चितगत भूमि यही मनोभौतिक ज्ञान को आमे जिते आम भितर संजीवित करवा, जितेबाला आमको आमर आत्मा सहित संपर्कित होगापाई पड़ो। से हूँ चितगत चेतना।
से चितगत चेतना जहाँ को आम आत्मा बोली कहूँ से होती से सत चित आनंद से सत चित आनंद तले जी अच्छा से होती अतिमानस अतिमानस हूँ विज्ञान अतिमानस हूँ चतुर्थ भूमि तेणु अतिमानस पर आम भितर रही मन आम भितर रही प्राण आम भितर रही शरीर पुणी थे मन पकई दूसरी भाई भोट मान कथा टी आमको कहवा सहज लगुच पढ़ा सहज लगुच तेणु आम भितर जो अच्छी सचित आनंद अतिमानस पुणी मन प्राण शरीर ये जो प्रतिबंधक अच्छी से हूँ अहंकार अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मान ही मन्यते से आमको आत्मा बोली को से आमको अतिमानस बोली को जो कहूँ एक नीरवता एक स्तब्धता एक उत्सर्ग भाव एक समर्पण भाव एक निर्लिप्त भाव एक निराकार भाव एक प्रशांत नीरव भाव एपर्यंत आम भितर सृष्टि न से पर्यंत आम बुझा आम भितर अहंग्र क्रिया ही रही किंतु आत्मा ही आमको कार्य लगाए आम भितर से चेतनार जागृति अच्छी बोली आमे माँ श्री आड़ को आसीचु आत्मा हूँ आनंदमय एवं भगवान होती आनंदमय आमे माँ श्री अर्जुन पाखे पढ़ु आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमयी तेणु से आत्मा आलोकन युक्त ज्ञान आमरे जो ज्ञान आम भितर अच्छी आमे ताको जदि आत्मा संबंधित करने को भितर भितर अंतर्गत भाव में प्रचेषा करवा आमर जो संकल्प अच्छी आमर जो बोध शक्ति अच्छी आमर जो सौंदर्यग्राहिता अच्छी आम भितर जो शक्तिमत्ता अच्छी आम भितर जो सृजनशीलता अच्छी एवं से आनंद रे आमे जिते कार्य करने चेष्टा करवा संकल्प हूँ निज भितर भाव थी आमको कौन प्रकार आत्मा एवं अतिमांस सहित संपर्कित हवा पड़े बोध हूँ आमर जो हृदबोध हृदयगत अनुभव से जगह निरंतर ये अवस्था रमको आम आत्मा अतिमांस सहित संपर्कित हवा पड़े सौंदर्य गायिता हूँ जिते पारिबा सेते आम परिवेश को सुंदर करने को चेष्टा करवा शक्तिमत्ता होती एवं जिते पारिबा सेते कौन सी शारीरिक प्राणिक मानसिक कर्म करने को चेष्टा करवा यही सृजनशीलता आमर मन भितर एवं एक अधिमानसर क्रिया संभवित कर अज्ञान रु ज्ञान आड़ को बाट खोलीदेव एक परिपूर्ण संकल्प जो मन ये जो स्वभाव आम भितर रही तारी भितर एक अतिमानस एक अतिचेतन हूँ स्वभाव सिद्ध भाव आम भितर दिने प्रस्फुटित हम पुणी मन को आसव केमिति हम आलोक केमिति जले आलोक को जालिबा को पड़े आलोक मन को जले ना आलोक को जमिति जालिबा को पड़े सेमिति आत्मा को जालिबा को पड़िबो स्वभाव को जालिबा को पड़िबो सौंदर्य बोध को जालिबा को पड़िबो आम भितर से जो प्राण रही तारी भितर जो शक्ति रही से हूँ आत्मार शक्ति आम भितर जो शरीर रही से हूँ आत्मार शरीर आम भितर जो मन रही से हूँ आत्मार मन किंतु
कथाटारे मु खाली कही दउछि आत्मार शरीर, आत्मार प्राण, आत्मार मन, किंतु वर्तमान से अहंग्र शरीर, अहंग्र प्राण, अहंग्र मन होइकी रही। दिस इज ए इनर वार विदाउट एस्केप लिखाई। ये हूँ एक अंतर संग्राम। जोग हूँ से संग्राम। कौन सी बाटरे आत्मा को जागृत करी अहंकार को प्रत्याहार करने हम, रूपांतर करने हम, विलोप करने हम, शेष करने हम। आम भितर जो पारस्परिक क्रियार जो धारणा, जो गुप्त तत्व, जो विश्वात्मा विराजमान कर सहित जितेबाला आमर संपर्क सृष्टि हम, सेतेबले आमे सहजरे बुझीपर ये जो प्रकृति आम भितर वर्तमान रही, सी आमको आच्छन्न करके रखी, आमको मोहग्रस्त करके रखी। सी हूँ एक माया, कौन सी ढांकुणी पड़ा भाया आम भितर से माया आमको आच्छन्न करके रखी। तेणु दीट विषय आम भितर रखा। गोटे हूँ सत्ता, गोटे हूँ संभूति, बीइंग एवं बिकमिंग। गोटे जगार आमे अच्छु, आमको नुआ किछि तैयारी करने हम। आम भितर भावना जदि रहिबो ये जो जीवन मोर अच्छी, मते ताको नुआ करके तैयारी करने पड़ो। से केते संग्राम करने को पड़ो हेले से जो संभूति गोटे हूँ बीइंग, गोटे हूँ बिकमिंग, आमको नुआ प्रकार तैयारी हवा को चेष्टा कले ये एक विवर्तनगत क्रिया, एक अस्तित्वगत क्रिया जहाँ अनिष्टत्व भितर आत्मगोपन करी लुचिकी अच्छी। मते जिते शिक्षा देले, जिते प्रकार शिक्षा देले, मते दिने संसार छाड़वा को पड़ो। ये जमिति सत्य बुद्ध को छाड़वा को पड़ो, श्री चैतन्य को छाड़वा को पड़ो, श्री अरविंद को छाड़वा को पड़ो, श्री माँ को छाड़वा को पड़ो, शंकराचार्य को छाड़वा को पड़ो। जो महापुरुष गांधी हूँ, गोपबंधु हूँ, दिने से अस्तित्वगत संपर्क को त्याग करी अनस्तित्वगत समाजगत व्यापकगत संपर्क भितर को आरोहण कर हम। ये जो आत्मा आविष्कार, यही आत्मा आविष्कार पाठक निज भितर चेष्टा करे। मु बहु समय आपण मानू कही भाई बोल माने 5 वर्षर पुओ टाइफॉइड रे पड़ी, को बही रे लेखा है छाड़ी देकी जेनापुर बंजा अंचल को लोक मान सुविधा असुविधा बुझापी चलीज। को शास्त्र रे लेखा अच्छी गर्भवती स्त्री सीता को भाई हाथ में पठेकी जंगल रे छाड़ी दे आसवा हम। तेणु ये जो आत्मा आविष्कार, ये जो आत्मगोपन, यही शब्द को आम जदि आम भितर पर्यालोचना करवा, गुप्त भाव आम भितर यही चेतना क्रिया करुची बोली आमे श्री अरविंद श्री माँ आड़ को आसीचु। तथापि आमे आमर से मु एवं मूर्त से अहंगत भाव को छाड़ी पारु ना। तेणु एक अति चेतन एवं ये अवचेतन यारी भितर जो तफात रही, अति चेतन कौन क्रिया करुची, अवचेतन कौन क्रिया करुची। माँ श्री अरविंद पाखरे बसीला बेले आमे कौन चिंता करुचंती, खाई बसीला बेले आमे कौन चिंता करुचंती। एवं यही अति चेतन एवं अवचेतन भितर आउ एक निश्चेतना अच्छी, जी तलकू तलकू टाणुची, जी लुक्कायित होइकी अच्छी, पुणी आविष्कार करने हम। तारी भितर अति चेतन अच्छी, से प्रकृति भितर पुरुष आत्मगोपन करी कारण
पुरुष प्रथम अच्छा प्रकृति पर आसी विवर्तन क्रिया भितर यही आत्म रूपायन आमर यही सनातन आत्मा जहाँ पूर्वर रही वर्तमान अच्छा भविष्य रे से अनंतता भितर आम जो निमग्न हो निजक मिसई दबा पानी भितर जमती लुण को मिसई दियंती एमती आम जो आमको मिसई दे पार से अनंतता करने को हम कारण ये जो विश्व प्रकृति से विश्व प्रकृति भितर एक विश्व प्रविष्ट आत्मा को अनुसंधान करने को गला बेले ये विश्वगत सत्ता से अभिमिश्र व्यक्ति सत्ता भितर आमको खोजा हम कौन आसिक सेठी मिसी जाउची कौन आसिक सेठी आचरण कर दउची कौन आसिक सेठी आमको निम्नमुखी कर दउची एवं आमर आत्मरूपायन मार्ग रे आम जो अग्रगति कर जो साहस हम समर्पण भाव हम जागृत हबार भावना सृष्टि हम आत्मा आड़ को आम जो अग्रगति कर गोटे शब्द अच्छी निर्वाण जमती बुद्ध घोषणा कले कामनार विनाश दुखर विनाश एकमात्र पथ हूँ निर्वाण छाड़ी जंगल भीतर को जावाई हम आमे पढ़ुचु आम जीवन भितर प्रत्याख्यान छाड़ा प्रत्याख्यान करने हम मनर धारणा अभिमत अभिरुचि अभ्यास परिकल्पना जो द्वारा मन नीरव हुए जिते भाई भौणी माने यही श्री अरविंद पाठचक्र सहित संपृक्त से माने समस्ते वाक्यटी जानते प्रत्याख्यान करने हम मनर भावना धारणा जद्वारा मन नीरव हुए ये नीरव मन हूँ आत्मार प्रकाश निमित्त एक मुक्त क्षेत्र तेणु आम जब गोटे सहज प्रश्न निजक पचार मो जीवन भितर मु कौन प्रत्याख्यान करी तेणु से शब्द को जब मंत्र भाया माँ पाखे प्रार्थना करवा प्रत्याख्यान करने हम छाड़ा हम मनर भावना धारणा अभिमत अभिरुचि अभ्यास परिकल्पना प्राण प्रकृतिर वासना दाबी क्षुधा उत्तेजना आवेग स्वार्थपरता गर्व काम क्रोध लोभ शरीर प्रकृतिर गूढ़ता संशय अविश्वास दुराग्रह यही नाना शब्द किए आम भितर न जानी सेमती ना किंतु किए करुच्ची तेणु नुआ प्रकार जो सृष्टि जो आत्म परिपूर्णतार सृष्टि जो मनोवैज्ञानिक सृष्टि जन विशिष्ट मनोवैज्ञानिक आमर भितर अच्छा सी होती चित्तरंजन दास तांको कथा समस्ते जानी आम चित्त भाई बोली हो एवं तांको सहित ओडिशा रे बहु जिले में अनेकंकर निबिड़ संपर्क अच्छी चित्त भाई शांति निकेतन रे पाठ पढ़ुले मनोविज्ञान विषय थिला मनोविज्ञान रे पीजी करुला बेले डेनमार्क नेदरलैंड रे जाइकी पीएचडी करने सरकार सहित जोगाजोग कले जोगाजोग चिठी जो आसला से परीक्षा थिला छाड़ीदे सीधा सड़क नेदरलैंड गले नेदरलैंड रु डेनमार्क गले डेनमार्क रे पीएचडी कार्य संपन्न कलापर पुणी चली आसिले आसिक भारत वर्ष में पहुंचले भारत वर्ष में पहुंचिकी पुणी अनुगुल रे गोटे स्कूल रे जाइकी रहिले आदिवासी स्कूल रे सेठ पुणी कौन मन है ताकू पुणी जिते सरकारी स्कूल रे परिणत करने सब जिनस टिके गला छाड़ीदे
आसिक भुवनेश्वर श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे रहिले गोटे सहज कथा सेतबेले चित्त भाई जितेबले जाइए आग्रा रे किछि वर्ष अध्यापक भाव में जोगदेले दरबा हो पारा नहीं कारण तांकर कौन सर्टिफिकेट नथिला। जानकी वल्लभ पट्टनायक जी होती चीफ सेक्रेटरी थिले आग्रार यूनिवर्सिटी सी निजे तैयारी करथिले से गोटे फाइल काढ़ी चित्त भाई की डाकिकी गोटे मीटिंग रे कहले चित्त बाबू आपण आग्रा शांति निकेतन ले पाठ पढ़े पाठ पढ़ा सरला शेष परीक्षा देले नहीं चली गले चिठी काढ़ी देखले आग्रार सबु लाइब्रेरी आपण विजिट करिसंती डेनमार्क एवं नेदरलैंड रो सबु लाइब्रेरी आपण विजिट करिसंती सबु लाइब्रेरी रे सर्टिफिकेट अछि किंतु आपण शेष परीक्षा देना छाड़ी चली आसती आपण मु 5 वर्ष है जोगाजोग करी आपण दरबा आसी काली सकाळू आपण आपण दरमा मो पाखरु देइथिबे चित्त भाई तापर दिन सकाळू सीधा सड़क भुवनेश्वर चली आसी दरमा आनिले नाई ए होती मनोवैज्ञानिक जड़े अध्यापक माँ श्री अरविंदर सबु बही प्रपत्ति जितेबले महापुरुष नीलमणि साहू चंद्रशेखर रथ शांतनु आचार्य समस्त पाखक नहीं गले समस्त मना कले ओडिया करें ना बोली चित्त भाई पाखक जो नहीं गले चित्त भाई कहले हौ देखिया प्रपति कहती हौ देखिया बोली ये कहले माने ताकरी पाखे बही थोई देकी पलि आसे तापर श्री अरविंद श्री माँ सबु बही को सी ओडिया रे रूपांतर कले तेणु आत्म परिपूर्णतार मनोविज्ञान होती एक सहज कथा नुह आमे जे पर्यंत निजकू निज भितर निजर स्वार्थ बोधरे आचन्न होइकी थिबा से पर्यंत आत्मगत अस्तित्व आम भितर प्रकाशित हब ना ताही होउची योगगत श्रद्धा एवं यही भाव जो जत श्रद्धा स एव सह बोली लिखाई से आत्मिक परिपूर्णता मनोविज्ञान अध्याय यही अर्धवाक्य अच्छी जो जत श्रद्धा स एव सह तार जमी श्रद्धा से मिति ये तमां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाभ्यहं मम वर्तन्ते मनुष्य प्राप्त सर्वस्व आमे गोटे सहज भाषा आहरी कहू जा मन जेमिति ता फल भी सेमिति किंतु मो भीतर को मो छड़ा किए देखुची मु जेते बेले मो स्वार्थ भितर बांधी अच्छी सेतेबेले मु जेते भल कथा कहले मध्य मो आवरण मते छेड़े पारिबो नाही मु जेते मो स्वार्थ को परिहार करकी जगत उद्देश्य रे उन्मुक्त हो जाइछि सेतेबेले केही मते बाधिकी रखि पारिबो नाही तेणु प्रकृति उपरे पुरुषर से शक्ति संपन्नता को आमको जिते स्वीकार करने हम आमको जिते अनुभव करने हम कारण पुरुष भितर प्रकृतिर उद्भव है किंतु प्रकृति पुरुष को आच्छन्न करिछि आउ थे वाक्य कहूँ भाई भौणी माने प्रकृति पुरुष भितर उद्भव है किंतु प्रकृति पुरुष को आच्छन्न करुछि ए संसार एमिति अछि ये संसार होती सत्य यही संसार को मिथ्या अधिकार करछि किंतु मिथ्या जानी पारु नाही कि दिने सत्यर विजय हब कारण रावण को जिते बुझेले से जमती बुझी पारिबो नाही सेमिति भाବରେ जिते प्रकारर प्रचेष्टा करा जायछि रामचंद्र पारि नाहंती श्रीकृष्ण पारि नाहंती श्री अरविंद को आसिक कहते हेई पारिबो नाही अति मानसरे प्रचेष्टा कर केवल अति मानसर रूपांतर सामर्थ्य अच्छी जहा परिवर्तन करदे पारि तेणु आत्म परिपूर्णतार मनोविज्ञान भितर आम तले अधिक महत्वपूर्ण
এই ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ସହଜ ବାକ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲେଖା ଦେଇଛି। ଗୋଳାଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଟି ଯେମିତି ବୁଲୁଥାଏ, ବାହାରି ପାରୁନଥାଏ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେ ଥାଏ, ଗୋଳାଟି ଭିତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କହିଲେ ଏ କୌଣସି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ନୁହଁ, ଏଠି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବୋଧଗମ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଯୋଗ। ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ, ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ସାବିତ୍ରୀ କି ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେ କହିବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ବୋଧଗମ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା, ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା, ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତା, ସେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଆମେ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ପଢୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଚେତନା, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ନମନୀୟତା, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ନିଃଶେଷରେ ସମର୍ପଣ। ଚେତନା କହିଲେ ଶକ୍ତି, ନମନୀୟତା କହିଲେ ଟିକେ ନରମ ହବାକୁ ପଡିବ, ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଚେତନା ନମନୀୟ ହେଲେ ସମର୍ପଣ ସହଜରେ ବଢିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ସମର୍ପଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାଙ୍କରି ହେଇଯିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନ ଶକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ, ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତତା, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାତ୍ମକତା, ୟାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କେତେଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। 5-10 ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସ ଏକତ୍ୱମ ଅନୁପଶ୍ୟତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ପ୍ରକୃତିଗତ ସେଇ ଅତିମାନସିକ ମହାଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଏକତ୍ୱକୁ ଆମ ଜୀବନର ପରମ ସମ୍ପଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ମିଶିକି ଏକ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ସବୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୋର ମୋର ଭାବ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନାହୁଁ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଭାବ, ବିରୋଧ ଭାବ, ବୈଷମ୍ୟ ଭାବ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏକତ୍ୱ ଆମ ଭିତରେ ସମବେତ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ପଢୁଛୁ ସହନା ଅବତୁ ସହନୁ ବିନୁକ୍ତୁ ସହ ବୀର୍ଯ୍ୟ କରବାବହି ତେଜସ୍ୱିନାମ ଅବଧିତମସ୍ତୁ ମା ବିଦ୍ୱିଷା ବହି। ହେ ଭଗବାନ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜାତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୱେଷ ନରହୁ। ୟୁର୍ବେଦ ନରହୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ କହି ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କରି ଜାଣୁନାହୁଁ। ତୁମ ଆତ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯଦି ଏକତ୍ୱକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଏକତ୍ୱ ପଶ୍ଚାତରେ ଯାହା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଆଡ଼କୁ ଆମର ପଥ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିମାନସ ଆଡ଼କୁ ଆମର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ବାଟରେ ଆମକୁ ସେଇ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଅତିମାନସ ଏବଂ ଏକତ୍ୱ, এই ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମା, ସେ ଅତିମାନସ, ସେ ଏକତ୍ୱ ଭିତରେ ଧୀରେ ହୁଏତ ଆମ ଜୀବନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।